And today I'm going to discuss with you folate antagonists. folate antagonist में जो है हमारे पास सल्फोनामाइड्स हैं जो कि folate synthesis inhibitors हैं। इसके अलावा folate reductase inhibitors हैं। और सल्फोनामाइड्स में एग्जाम्पल हैं सल्फोनिलमाइड, सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फासॉक्साजोल, सिल्वर सल्फाडायजिन, मेफेनाइट, ठीक है। और folate reductase inhibitors में ट्राइमेथोप्रिम और पायरमेथामाइन है। अच्छा, अब ये जो folate antagonists हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। ये क्या सल्फोनामाइड्स बेसिकली क्या करती हैं, ये पैरामाइनो बेंजोइक एसिड की सिंथेटिक एनालॉग्स हैं। ये जो पैरामाइनो बेंजोइक एसिड है ये बैक्टीरिया में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का प्रिकर्सर होता है। बेसिकली बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड की टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है, टेरेडीन और पैबा दैट इज पैरामाइनोबेंजोइक एसिड in the presence of glutamate and dihydroprorate synthase form dihydrofolic acid, which with the conversion of 2-NADPH plus 2H to 2-NADP and dihydrofolate reductase enzyme converts to tetrahydrofolic acid. This tetrahydrofolic acid is used in the synthesis of amino acid, purine bases and thymidine bases. Now, so what sulfonamides do? They are synthetic analog of PABA, and instead of PABA, they bind to dihydroteurate synthase and inhibit the reaction of conversion to dihydrofolic acid. They form defected dihydrofolic acid, and thus tetrahydrofolic acid is not formed. Then what trimethoprim do? This trimethoprim inhibits dihydrofolate reductase enzyme and thus inhibiting the reduction of dihydrofolic acid to tetrahydrofolic acid and thus inhibiting ultimately amino acid, purine bases and thymidine bases synthesis. Thus what happens in bacteria? Protein synthesis is inhibited and the bacterial growth is and replication is inhibited. अच्छा, इसके बाद क्या है कि ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इसे सल्फोनामाइड इनहिबिट कर रहा है। दिस इज़ specific in bacterial cell, but the second step is same in human and bacterial cell. Resistance, the bacteria who get folic acid from environment and do not synthesize folic acid in themselves are resistant to sulfonamides and this trimethoprim. ठीक है। अच्छा, जो सल्फोनामाइड्स हैं ये फर्स्ट बहुत पहले जब यूज़ होता है तो एक डाई था that was known as prontosil dye. This prontosil dye has a structure same as sulfonamides. So this prontosil was found to have some antibacterial activity. Then the derivatives of prontosil were formed and they were developed sulfonilamide, sulfamethoxazole, सल्फासॉक्साजोल, सल्फाडायजिन, ठीक है। फिर इनका जो अब बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट एंटेरोबैक्टीरिया इन यूरिनरी ट्रैक्ट एंड नोकार्डिया स्पीशीज। सल्फासैलाजिन and plus trimethoprim combination are used for the treatment of toxoplasmosis. Different indication in which sulfonamides are used are sulfasalazine is used in chronic inflammatory bowel disease, chronic IBD, that is chronic inflammatory bowel disease. As sulfasalazine is not absorbed after oral administration, it remains in the GI tract and thus it is very useful for the treatment of chronic IBD.
जो वहाँ पर फ्लोरा होता है वो कन्वर्ट कर देता है सल्फा सैलाजिन को सल्फा पायरिडिन और 5 अमाइनो सैलिसाइलेट में। तो ये जो है 5 अमाइनो सैलिसाइलेट जो है वो एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो इसकी वजह से ये इस डिज़ीज़ के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा सिल्वर सल्फर डाइज़िन और मैफेनाइट जो है उनको टॉपिकली अप्लाई किया जाता है बर्न्स पे, तो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। स्पेसिफ़िकली सिल्वर सल्फर डाइज़िन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैफेनाइट जो है वो पेन कॉज़ करती है वहाँ प्लेस ऑफ एप्लीकेशन पे। तो ये जो है इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन को जो बर्न्स पे होने लगती है, तो इस तरीके से ये इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं वहाँ पे। अब ये जो जितनी भी सल्फ़र ड्रग्स हैं वो एल्बुमिन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, तो और इसके अलावा ये जो है क्या करती हैं कि ये एसिटाइलेट होती हैं प्राइमरीली इन लिवर में इनकी एसिटाइलेशन होती है। तो वहाँ यहाँ पे ये आ जाता है कि एक जो स्लो एसिटाइलेटर्स हैं तो इनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होगी, स्लो होगी, जबकि जो फास्ट है उनकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी। जो मेटाबोलाइट फॉर्म होता है वो एसिडिक होता है, तो जिसकी वजह से ये क्या करती हैं एक्यूमुलेट यहाँ लिवर से मेटाबोलाइज होके इनकी यूरिनरी एक्सक्रीशन है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो क्या होता है कि ये वहाँ पे जाके क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेती हैं नेफ्रॉन्स में, दैट्स वाई दे कॉज क्रिस्टल यूरिया। अच्छा, इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में फिर क्रिस्टल यूरिया है, हाइपर सेंसिटिविटी है, जो लोग सल्फा कंपाउंड से हाइपर सेंसिटिव होते हैं उनमें ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कॉज करती है। इसके अलावा हीमोपोइटिक डिस्टर्बेंसेस कॉज करती है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया इनकाउंटर्ड होता है स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा कर्नेक्ट्रस जो है ये डिसऑर्डर न्यूबॉर्न्स में होता है स्पेसिफिकली, जिनमें लिवर मेटाबॉलिज्म डेवलप नहीं हुआ होता है। समटाइम्स क्या होता है तो उनमें जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें क्योंकि बिलिरुबिन भी लिवर से मेटाबोलाइज होता है, तो यूजुअली जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको जॉन्डिस भी होता है क्योंकि वो बिलिरुबिन को भी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। अब ये क्या होता है अगर ऐसे बच्चों को जो है सल्फोनामाइड्स दे दी जाए तो वो क्या करते हैं बिलिरुबिन की बाइंडिंग साइट्स को डिस्प्लेस करके उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं, क्योंकि बिलिरुबिन भी एल्बुमिन से बाइंड करता है। ये बिलिरुबिन को डिस्प्लेस करती हैं। अब बिलिरुबिन जो है वो CNS में एंटर कर जाता है और वहाँ पे जाके न्यूरॉन्स की नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देता है, एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज कर्निक्टरस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इनकी ये है कि न्यूबॉर्न में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि कर्निक्टरस कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा ये क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेसमेंट करती हैं, तो ये वॉरफेरिन के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर सकती हैं और मीथोट्रेक्सेट के इफ़ेक्ट को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये उनसे compete करके उनकी जगह प्रोटीन से जाकर बाइंड कर जाएंगी और उनके इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करेंगी। अच्छा, जो ट्राइमेथोप्रेम है ये क्या करती है, ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है और इस तरह से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को रिड्यूस करती है। इसकी इंडिकेशंस में एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वेजिनाइटिस है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में क्या है कि ये एडवर्स इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है ऐसे जो कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकोपीनिया है, स्पेशली इन प्रेग्नेंट पेशेंट। ये जो क्योंकि उनको जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉलिक एसिड की, तो उनमें ज़्यादा डेफिशिएंसी कॉज कर सकती हैं, और ये इफ़ेक्ट जो है हम रिवर्ट कर सकते हैं बाय साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिनिक एसिड
which does not enter bacterial cell and provides our body with the folic acid which becomes deficient due to this drug administration. अच्छा, एक जो ड्रग है पायरिमेथामाइन, वो एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे यूज़ होती है, और वो जो प्लाज्मोडियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है प्लाज्मोडियम में. Then cotrimoxazole, which is the combination of trimethoprim and sulfamethoxazole, this combination causes synergistic effect, and it is used in conditions like urinary tract infection, Haemophilus influenza, Pneumocystis jirovecii infection, which is usually caused in immunocompromised patients like AIDS patients, methicillin resistant Staph aureus infection. इसके अलावा it is drug of choice for infection caused by nocardia species. सैल्मोनेला टाइफी की मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होता है ये, मतलब टाइफॉइड की मैनेजमेंट में भी यूज़ होती है कोट्रामोक्साजोल. ठीक है. So this was all about folate antagonist, and you can ask any question if you have regarding question, and in next lecture I will discuss with you tuberculosis and its treatment. Thank you, class.